नमस्कार। आज हमसे एक पूछा गया कि गुरुजी एक बात बताइए कि शिरडी के साईं बाबा को तो 100 साल 125 साल हुए और हमारा सनातन धर्म तो इतना पुराना है। पुराने हमारे राम हैं, पुराने हमारे कृष्ण हैं, शिव हैं, माता जी हैं। लेकिन ये 100 125 साल में ये शिरडी के साईं बाबा कैसे हर देश के कोने कोने में पहुंच गए? हाउ द एवरीबडी इज रीच ऑन दैट वर्ल्ड का कोना कोना में कहीं ऐसा नहीं जहां पर साईं बाबा का मंदिर नहीं है। हाउ इज पॉसिबल? प्रश्न गौर करने वाला था। और आर द जो आप देखिए आज भले शिव क्यों कृष्ण कृष्ण का तो इन्होंने कर रखा है इस्कॉन ग्रुप ने, पूरा प्रभुपाद जी ने। और जो प्रश्न पूछा हमसे वो वाकई गौर करने वाला। आप में से बताए कोई उत्तर? एनीबडी वांट टू गिव द आंसर व्हाई साईं बाबा जी टेम्पल एवरीवेयर इन ऑल ओवर द ग्लोब, परसेंटेज वाइज? कृष्ण जी, यू आर द प्रिस्ट। कुछ भी हो, साईं बाबा में पावर जो है, मैं आपको बताता हूं। मैंने ग्रहों के माध्यम से सीखा, चूंकि ग्रहों में रुचि लेता हूं। द साईं बाबा इज अर्लियर is spending his life as a फकीर। एक फकीर की जिंदगी जीते थे, कुछ खाना पीना कुछ नहीं, जो मिल जाए वो खा लेते थे और एक फकीराना जिंदगी जीते थे। उसके बाद वो जब नहीं रहे, वो फकीर रहे, आखिरी तक फकीर रहे। तब उनके चमत्कारों के कारण उनको गुरु के रूप में पूजने लगा गया। दे आर वर्शिपिंग एज ए गुरु, विच एलिमेंट द 5 एलिमेंट बॉडी इज लिविंग लाइक ए फकीर, नॉट बॉदरिंग फॉर एनी वन, नथिंग एट ऑल, बट humanity comes first for him. So that humanity comes first after the 5 element human body. They are worshipping as a guru. So we can say there's a combination of Guru and Rahu. Yes, Krishnan ji want to say something? Yes, Krishnan ji. Namaskaram, Guruji. I wanted to say something earlier, but I couldn't unmute myself. Okay, So the okay. main, so the main principles of Baba is basically, as you said, help the poor and the needy, Guruji. Help the poor and needy. And even if somebody needs money, what Baba used to do is he used to get money from other people and then give it to the person who needed money. And he used to treat animals and human beings at the same in the same way. So there was no bias and there was no, he didn't give any priority to anybody. Great. Now there is lot of example you can get it more than Sai Baba. We did for humanity. In our ancient book, Raja Bali, and who donate whole life. Nobody can go empty hand in front of him without any caste. As per me, like, I respect your opinion, but as per me, there is not only one caste. Is one caste only that he lives unconditionally, totally. Number one. Number two, he spent the life as a fakir. They used to chant, they used to enjoy their own life. And when you involve with yourself, all divine particle come out. So those are, there is a lot of example in our old books, lot of example there. Who can bring the Ganga on that on spot? I'm not, we are talking also as an example, but it is a recent example. So because if everybody, Sai Baba, his live whole life and lot of people are giving trouble to him, decided that
decided the doing the humanity, the taking the charity work, taking money from someone, donating to someone else, needy people giving. But overall, kahin na kahin, as per my opinion, there is a combination of Fakirana and Guru. Normally, Fakir we use for the Memodian people. I don't want bound to the deity in the casteism, but earlier life, which has been, I already searched in the Googles and all, is Fakirana Andaz. He lived whole life. After the Sai Charitra and books, it has been made by men. Because Sai Charitra is spread the knowledge, because overall knowledge is knowledge. It's become someone else, right? DT becomes someone, but after he's spending his life, like you explained, Krishnanji, we take the money from someone and poor needy people. Everybody is most of the part, but that is the not main party. May be possible as per you. That become there is lot of people, others or the initiated, those are working very hard for humanity. But there is no name is nothing. But in the Kali Yuga, the person took the. I mean, in the Kali Yuga, it is very difficult. It is very difficult thing from Swarth to Parmarth. So Sai Baba never involved in the Swarth, always believe in the Parmarth with the Fakirana Andaz. And finally, when people understand that element, so that element they are worshipping as a guru. As per me, as per my opinion, I told him he accepted it. He's also good astrologer, well as Guruji, yes. I say it's not if you are worshipping due to your Rahu and Guru combination, it's conditional. We respect his work. What if why we pray for Rama? Rama did the justice with his relations. Why we pray for Krishna? Why element body like nothing at all? Krishna show the way. Krishna show the route to the all over the globe with the help of Bhagavad Gita. So आज के युग में साईं बाबा अधिक तक पूजे जा रहे हैं. सब जगह जगह देखो आज जा रहे हैं और मंदिर में लोगों को मिल भी रहे हैं, लोगों के कार्य भी हो रहे हैं. मैं ये नहीं कहता कि साईं बाबा को पूजने से ज्यादा काम होते हैं लोगों के और किसी और को पूजने से कम होते हैं. वन आर द सेम. हाउ मच स्ट्रांग इज योर डिवोशन, हाउ मच स्ट्रांग इज योर कनेक्शन. आप साईं बाबा की जगह किसी अंदर से कनेक्शन कर लो और मेहनत कर लो, वहां से रिजल्ट आने लग जाएगा. These are the energy. You travel the Sai Baba temple, you get a lot of good energy surroundings. Every temple. But that is the logic. Maybe I'm wrong. I search it with the help of planet. Everybody knows the Kali Yuga. Both are there. Angel quality and devil quality. तो भविष्य में आपके मन में भी कोई सा प्रश्न आए तो मुझसे पूछिएगा आप, तो हम एक प्रश्नोत्तरी हम बराबर बनाएंगे इसकी. तो आज कलयुग पुराण के एक रिमेडी में, आज रिमेडी सत्र हमारा चालू हो गया कलयुग पुराण का. पहला चीज, कलयुग पुराण में सबसे ज्यादा आने जाने वाले साईं बाबा. देखिए ऑटोमेटिकली उन्होंने अपनी उपस्थिति हमारे मुख से और किसी के प्रश्न से वो प्रेजेंस को स्वीट कर दिया. बहुत कुछ सीखना है. हम किसी भी डीटी से सीखते नहीं है. जैसे कृष्ण जी ने बताया कि वो डीटी ऐसे थे, ये आधे लोगों को मालूम भी नहीं होगा. बस उनको तो उनकी प्रॉब्लम्स और पॉजिशन मालूम है और किसी ने कह दिया कि साईं बाबा के पास जाओ पूछो तो जल्दी काम होता है. आई रिस्पेक्ट जया नॉलेज ऑल्सो ऑन साई चरित्रा. वो पूरा पढ़ के उसने पूरा फुट रखा है. आज इस कलयुग में सबसे पहले मैं सभी को प्रणाम करूंगा, शिव एनर्जी को प्रणाम करूंगा, रामा एनर्जी को प्रणाम करूंगा, क्योंकि कहीं नहीं है तो शरीर के रूप में वो संदेश देगा आपको. उस संदेश को आगे लेकर जाना, किस प्रकार चलना, ये आपका काम है. वो संदेश
राम ने दिया, रिश्तों के साथ अपनी मर्यादा में रहकर तो जियो। कृष्ण ने कहा, कृष्ण ने कहा द्वापर में, मर्यादा के साथ रिश्तों का पालन करके भी जियो, लेकिन जहां पर युक्ति का प्रयोग करना पड़े, जहां पर ऐसा लगे आप हायर कहलाओगे, निष्क्रियता कभी ना कभी में कन्वर्ट होती है। इसीलिए कहा कि पाप करना भी गलत है और पाप को सहना भी गलत है। अत्याचार करना भी गलत है, अत्याचार सहना भी गलत है। सो दोज आर हैविंग मेनी, मतलब आई एम नॉट कोटिंग इन द प्रॉब्लम, टुडे वी डिस्कस ऑन द साई बाबा ओनली। साई बाबा इज ए डीटी, आई एम नॉट, आई रिस्पेक्ट योर ऑल डीटीज टू होम यू फॉलो। मैं आप सभी के लोगों की डीटी को प्रणाम करता हूं, और आप जिससे कनेक्शन है उससे कनेक्शन बनाए रखें। ये नहीं कि वो साईं बाबा जल्दी काम कर देते तो उनके पास जाओ। प्लीज डोंट बिकम टू मच कंडीशनल। नाउडेज होता है ऐसा, तो वहां नहीं चले जाओ, वो पंडित के पास नहीं तो वो ज्योतिष के पास चलेगा, ये ज्योतिष के पास नहीं तो वो ज्योतिष के पास नहीं। ऐसा नहीं करना। आपका जीवन, आपको किसी की जरूरत नहीं। जिस प्रकार मोबाइल को जरूरत लगती है एक चार्जिंग पॉइंट की, वैसे ही आपको भी जरूरत लगती है एक चार्जिंग स्टेशन की। और आपको भी एक ही जगह चार्जिंग लगाने की आदत होगी। जरा सा वो चीज ऑक्यूपाई हो जाए, आप उठ के दूसरी जगह लगाने में 10 गाने गाने गाते हो। मेरा यहाँ लगाया था, दूसरे लगा दिया। इससे ही आपका ये आपके जीवन में ईश्वर है, आपके जीवन में जो आपकी सांस चला रहा है, वो कृतज्ञता डीटी के रूप में, बलिराम हो, कृष्ण हो, और जो भी हो, उसके रूप में मानते हैं। तो साईं बाबा को भी उसी प्रकार रिस्पेक्ट करें ना। साईं बाबा के साथ साथ फिर वो व्यक्ति जिसमें मानवता भर भर के पड़ी है, वह व्यक्ति मेरे साईं बाबा के योग बराबर है, जिसमें ह्यूमैनिटी की फीलिंग्स है, उसी के लिए कुछ करने की चाह है। तो मैं आपसे बात करूं, आप कितनी चाह आप में ने के लिए, किसी और के लिए करने के लिए कितनी चाह, वाओ हाउ मच माय वर्क विल डन, देन आई विल डू समथिंग फॉर अदर्स। 80%, 90%, गुरु जी, इफ आई सेटल माई सेल्फ देन आई विल डू फॉर अदर्स। सॉरी, गॉड डोंट नीड ए गार्बेज टाइम। ओके, भगवान को बचा खुचा समय नहीं चाहिए। लोग 50-60 साल की एज में जाके भगवान का नाम जपते, भगवान भी उनको वैसे ही जपते हैं। जब से हुई आयु, सोचो, जब से एक बच्चे से सीखो, बच्चा कैसे मदद करता है दूसरे बच्चे की। पर जैसे जैसे हमारी बुद्धि बढ़ती है, हमें स्वार्थ आते जाता है, और से दूर है। ओके, तो आज कलयुग पुराण में एक और उपाय देना चाहूंगा मैं आपको। सामान्यतः मैंने 5 उपाय तो जो दिए हैं आपको 9 वर्ष के, वह आपके लिए एक पूर्ण पंच तत्वों को आपके साथ बैलेंस रखने में सक्षम है। पर जब भी ये 25 दिसंबर अभी आएगा, कुछ दिनों बाद, जब भी आए 25 दिसंबर, किसी जरूरत की, किसी की इच्छा, जो आपको लग रहा है उसकी जरूरत है, वो उसकी इच्छा है, लेकिन आपको लग रहा है अरे इसकी जरूरत है, इसे जरूर पूरा करना। और आप में अगर भावनाएं अच्छी हैं, तो 100%, 101% वो कार्य आपके माध्यम से होके रहेगा। और कभी जिंदगी में ये मत सोचना, कल हमने एक वीडियो डाला, अपने फर्ज का कि मैं करूंगा तो ही होगा। सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, नेवर थिंक मैं नहीं रहा तो काम और अच्छा होगा। ये सोचिए, अपॉर्चुनिटी मिली है कुछ करने की, या तो हम किसी की दूसरे के बाल में डाल देते हैं, तो वो देख रहा है कि उसको कर लेने दो। तो वो अपॉर्चुनिटी तो किसी न किसी को मिलती ही है, ये बात ध्यान आप। ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी किसी को, वो अपॉर्चुनिटी कहीं आपके पास आके खत्म ही हो जाती है, वो कहीं और के पाले में जाती है, वो उसे आपसे अच्छी करती हो। ठीक है, तो कलयुग पुराण के आज हम, कल से तो हम नया अभी चयन लेंगे, हम नया चीज लेने वाले हैं अभी सेशन आने वाले समय में, रिश्तों से आपकी समस्या का इलाज, हाउ टू
heal your aggression and worries with the help of your relation. कलयुग पुराण कल और रखेंगे, परसों भी रखेंगे, बात करेंगे। और कल को और परसों के सत्र उपायों के साथ आपके प्रश्नों के भी रहेंगे। आपने कलयुग पुराण में योग में के बेसिकली आप रिकॉर्डिंग नहीं देख पाएंगे, पर भी जो भी आपको याद है आप देखें। और मेरा पूरा विश्वास है ये हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है, ये कहीं ना कहीं एक जरूर एक नई दिशा देगा। अभी माई टोटली स्कोर, टोटली कॉन्सेंट्रेशन ऑन द पिता पुत्र दिवस, मकर संक्रांति, 15 दिसंबर। ओके, ब्लेसिंग्स, टेक केयर ऑफ